बाखड़ा में मछली पकड़ने पर आज से 15 अगस्त तक पूर्ण रोक। पकड़े जाने पर नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत होगा मामला दर्ज। मछली के प्रजनन काल के कारण हर वर्ष होती है मछली के शिकार पर 2 महीनों की रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम गर्ग और आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट। बाखड़ा डैम की मछली खाने के शौकीन लोगों के लिए बुरी खबर आई है, क्योंकि मछली के प्रजनन काल को देखते हुए इन 2 महीनों में जून से अगस्त तक मछली के शिकार पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। मत्स्य विभाग हिमाचल द्वारा बाखड़ा डैम के पीछे बने गोविंद सागर झील सहित अन्य जलाशयों से मछली का शिकार करने के लिए आज से आने वाले 2 महीनों के लिए पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में और जानकारी देते हुए मछली कारोबार के बड़े ठेकेदार रिपू कोहली ने बताया कि हिमाचल सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा मछली के प्रजनन काल को देखते हुए जून से अगस्त तक मछली पकड़ने पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस 2 महीने के दौरान मछली के शिकार पर पूरी तरह रोक रहेगी। रिपू कोहली ने कहा कि हालांकि पहले प्रजनन काल 1 जून से 1 अगस्त तक माना जाता था, लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण बीते कुछ वर्षों से इसे 15 जून से 15 अगस्त तक कर दिया गया है और इस दौरान 2 महीनों की पूरी छुट्टी मनाई जाएगी और मछली खाने के शौकीनों को अब ताजी मछली 15 अगस्त को ही मिलेगी। उधर हिमाचल मत्स्य विभाग के डायरेक्टर सतपाल मेहता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मछली के प्रजनन काल के दौरान अगर कोई मछली का शिकार करता पकड़ा गया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए विभाग की ओर से विशेष टीमों का गठन करने के अलावा उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं, जो मछली के अवैध शिकार करने वालों पर कड़ी निगरानी करेंगे और इस 2 महीनों के दौरान अगर कोई मछली का अवैध शिकार करते पकड़ा जाए, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस के होने के कारण 3 वर्ष की सजा के साथ साथ भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी है। बाखड़ा हिमाचल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? नाम दसो सर अपना। मेरा नाम रिपू कोहली है जी ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਹਲੀ ਫਿਸ਼ ਓਨਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰਤੇ ਕੁਝ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਸ਼ ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਅਰਬਾਊਟ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ, ਕਤਲਾ, ਸਿੰਘਾੜਾ ਤੇ ਰਹੂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਲਵਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਟੇਸਟ? ਸਰ ਅਗਲਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦੇ ਆ ਸਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਲੈ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਰੋਬਿਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮੀਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਖੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਲੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। मत्स्य पालन विभाग ने जो है ये 2 माह का
बंद सीजन जो होता है, ये इसमें प्रजनन काल जिसको कहते हैं हम, ये आज से हमने लागू कर दिया है इसको। और इसके दौरान जो है हमारे अलग अलग जलाशयों में, मतलब जो हमारे सामान्य जल हैं सभी में ये मत्स्य आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। और हमने जैसे जलाशय हैं तो उसमें हमारे विभिन्न जलाशयों में कैंप्स वगैरह लगाए हुए हमने उड़न दस्ते भी उसमें गठित किए हुए हैं। जैसे कि पौंग जलाशय बड़ा जलाशय है, इसमें हमारे कैंप्स हैं, 18-20 कैंप हमने लगाए हुए हैं। और उसमें दिन रात जो है हमारे वहाँ पे टेंटों में हमारे कर्मचारी जो हैं वो गश्त करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अवैध मत्स्य आखेट ना हो। इसी प्रकार गोविंद सागर में भी हमारे यहाँ टेंट्स भी लगाए हैं लोगों ने। और एक पर्टिकुलर स्थान से जो है वो हमेशा जो वो इलीगल फिशिंग को चेक करने के लिए 2-2, 3-3, एक कैंप में 2-2, 3-3 हमने एम्प्लॉई जो हैं वो रखे हुए हैं। और इनकी 2 माह में जो है वो इनकी छुट्टियां भी जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। ये 2 माह में हमारे कर्मचारी जो हैं किन्हीं मतलब विपरीत परिस्थितियों में ही केवल उनको अवकाश मिलता है, अदरवाइज़ जो है उनको 2 महीने जो है दिन रात ड्यूटी करनी पड़ती है, जिससे कि मछली का जो अवैध मत्स्य आखेट ना हो और हमारा प्रजनन जो है वो सही तरीके से हो। हाँ, इसमें ऐसा है कि कोई अगर अवैध रूप से मछली मारता हो पाया गया या फिर जैसे जाल से कोई मछली मारता हो पाया जाए तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है। धारा 7 है एक, तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 3,000 रुपये तक जो है 3 साल तक सज़ा हो सकती है और 5,000 रुपये तक इसमें जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी है। अब हर रिजर्वायर में अपना एक उड़न दस्ता बनाया है और वो जो उड़न दस्ते बनाए गए हैं हमने, वो पूरे उस रिजर्वायर को जो है वो देखेंगे, चाहे वो सड़क मार्ग से भी जाएंगे और हमारे वो मोटर बोट के ज़रिए भी जो है वो कहीं पर भी छापा मार सकते हैं। ये जो कैंप लगाए हैं उसके अलावा हमारा एक उड़न दस्ता भी होता है, वो हमेशा तत्पर रहता है इन चीज़ों। जहाँ से भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है वो तुरंत वहाँ पे जा कर के उस अवैध मत्स्य आखेट रोकथाम के लिए जो है वो प्रस्थान करते हैं और वहाँ पे जाके प्रॉपर एक्शन जो नियमानुसार एक्शन होता है उसको लेते हैं।